اس ویڈیو میں WhatsApp کے آپ 7 بہترین ٹرکس جن کا جاننا WhatsApp کے ہر یوزر کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ WhatsApp کے ایک دلچسپ فیچر ایموجیز کے بارے میں ایک انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے اپنے WhatsApp کے ایموجیز سائن پہ کلک کریں، یہاں پر سرچ کے بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کی بورڈ سے کوئی بھی ورڈ لکھیں۔ یہاں ہم نے لو لکھا، اس میں لو کے ایموجی سامنے ہیں، آپ اس کو دائیں اور بائیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بوائے کے لکھنے پہ بوائے کی تصویر آ جاتی ہے۔ جو بھی آپ لفظ لکھیں گے اس کی ایموجیز یا اسمائلیز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اسی طرح آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، اردو میں اپنی پسند کے ایموجیز ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف احساسات، جذبات اور کھیلوں کے یا جانوروں کے نام یا ملکوں کے نام آپ تلاش کر سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ براڈ کاسٹ بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے WhatsApp کو کھولیں اور اوپر کے جو 3 نقطے ہیں ان پہ کلک کریں۔ یہاں پہ آ کر آپ نے نیو گروپ کے نیچے نیو براڈ کاسٹ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کلک کریں گے۔ تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنی پسند کے جو کانٹیکٹس ہیں ان پہ آپ باری باری کلک کریں اور اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈس کو، اپنے فیملی ممبرس کو یہاں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ٹک کے نشان پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے تمام ممبرس ایڈ ہو جائیں گے۔ یہاں ہم نے 7 ریسیپینٹس کا براڈ کاسٹ بنا دیا ہے، آپ 256 تک ریسیپینٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید تبدیلیوں کے لیے آپ ان 3 نقطوں پہ کلک کیجئے براڈ کاسٹ کے اندر۔ پھر اس کے بعد براڈ کاسٹ لسٹ کے انفو پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے نئے ریسیپینٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا ریسیپینٹ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ پینسل کے نشان پہ یا آئیکن پہ کلک کریں گے تو آپ براڈ کاسٹ کا نام کوئی نام دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنے پسند کا کوئی نام دے دیں۔ میں نے مائی فیملی براڈ کاسٹ نام دے دیا ہے اور اس کے بعد اوکے کر دیں۔ یہاں آپ کا مائی فیملی براڈ کاسٹ بن چکا ہے۔ تو اس طرح آپ براڈ کاسٹ بنائیں گے تو آپ جو چیزیں بھیجیں گے وہ دوستوں کو ملتی رہیں گی۔ WhatsApp کی ایک اور فیچر میڈیا آٹو ڈاؤن لوڈ کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ فیچر ہے جس کا جاننا WhatsApp کے ہر یوزر کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ آپشن آن ہوگا تو اس کے بعد آپ کو جو بھی تصویریں، ویڈیوز، آڈیو، ڈاکومنٹس وغیرہ ملیں گی وہ آٹومیٹکلی آپ کے گیلری میں جا کے سیو ہوں گی۔ بعض اوقات آپ کے پیکیجز بھی جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی میموری جلدی فل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر کے 3 نقطوں پہ کلک کیجئے، اس کے بعد نیچے سیٹنگز پہ آپ آ کے کلک کیجئے اور اس کے بعد چوتھا آپشن ہے ڈیٹا اینڈ یوزیج، اس پہ آپ کلک کیجئے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو وہاں بولڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میڈیا آٹو ڈاؤن لوڈ۔ اس کے نیچے واضح لکھا ہوا ہے کہ وائس میسیجز کو بہترین کمیونیکیشن کے لیے آپ بند نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ موبائل ڈیٹا اور وائی فائی پہ جو ڈیٹا ہے ان کو آپ بند کر سکتے ہیں۔ موبائل ڈیٹا پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے 4 آپشن ہوں گے، فوٹوز، آڈیو، ویڈیو اور ڈاکومنٹس کا، جن کو آپ بند کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ٹک ہوں گی تو وہ چیزیں آپ کی آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ ہوں گی، اور ان ٹک ہوں گی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوں گی۔ یہ فوٹوز پہ ٹک ہے تو یہ فوٹوز آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ ہوں گی اور باقی چیزیں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ وائی فائی کا جو ڈیٹا ہے، وائی فائی کے ڈیٹا کو بھی آپ آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ ہونے سے بند بھی کر سکتے ہیں، اس کو آن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آٹومیٹکلی اب آن ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ ہوں گے وائی فائی پہ۔ اسی طرح یہ ایک گروپ ہے، اس گروپ میں تقریباً 219 MB کا ڈیٹا ملا ہے، چونکہ وہ WhatsApp کا فیچر ویڈیو کا بند تھا تو اس وجہ سے یہ آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئی۔ اس کے نیچے ایک اور آپشن ہے کال سیٹنگز کا۔ اگر کال سیٹنگز کے دوران آپ کی کال میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، اسموتھلی کال نہیں چلتا اور بفرنگ ہوتی ہے تو آپ اس آپشن کو آن کیجئے اور ڈیٹا کے آتے جاتے ہوئے آپ کی کال ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ ویڈیو WhatsApp میں ملنے والی مخصوص پیغامات کو صحیح راز میں رکھنے کے حوالے سے ہیں۔ یقیناً دوستو آپ کا کوئی دوست ایسا ہوگا یا آپ نے ایسا گروپ جوائن کیا ہوگا جہاں سے ملنے والی ویڈیوز اور تصویریں آپ نہیں چاہتے کہ کسی صورت کسی کے ہاتھ لگیں یا گھر میں بچے دیکھیں یا گھر کے افراد دیکھیں، تو آپ کو ان کو چھپا بھی سکتے ہیں۔ تو WhatsApp کا یہ دلچسپ فیچر فعال رکھنے کے لیے آپ اس شخص کے میسیجز پہ کلک کیجئے یا گروپ پہ کلک کیجئے، اس کے اندر اوپر کے 3 نقطوں پہ آپ کلک کیجئے، اس کے بعد گروپ انفو پہ کلک کیجئے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے یہاں پہ میڈیا ویزیبلٹی پہ آپ کلک کیجئے۔ یہاں کے بعد آپ کو
आपसे सवाल पूछा जाता है, आप चाहते हैं कि आपकी आइंदा आने वाली मीडिया आपको गैलरी में नज़र आए। अगर आप चाहते हैं नज़र आए तो यस पे आप क्लिक कीजिए, अगर आप तीन को दबाना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक कीजिए। ये तस्वीरें वगैरह, वीडियोस वगैरह मीडिया आपके फ़ोन में जाके कहीं सेव हो जाती है। उनको देखने के लिए आप माई फाइल, माई एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर के ज़रिए या इंटरनल मेमोरी में जाके या SD कार्ड में जाके आप व्हाट्सएप का फोल्डर ढूंढे, उन पे आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ आपको दो फोल्डर नज़र आएंगे, डेटाबेस का फोल्डर और मीडिया का फोल्डर। आप मीडिया के फोल्डर पे आप क्लिक कीजिए। उसके अंदर व्हाट्सएप से मिलने वाली तमाम पैगामात और मैसेजेस मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ फोल्डर्स में पड़ी हुई हैं। मसलन हमने वीडियोस देखनी है तो आप व्हाट्सएप के वीडियोस के फोल्डर पे आप क्लिक कीजिए। इसके अंदर वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं जो आपको व्हाट्सएप से मिली हैं। इसके अंदर एक और फोल्डर है सेंट, और इस फोल्डर में तमाम वीडियोस मौजूद है जो आपने भेजी हैं। और इसके अलावा एक और फोल्डर आपको नज़र आएगा प्राइवेट का, और उसके अंदर वो तमाम वीडियो है जो आपने सरे राज में रखी हैं। और अगर आपको वो फोल्डर नज़र नहीं आ रहा या उसके अंदर कोई फाइल नज़र नहीं आ रहा है तो आप ऊपर के 3 नुक्तों पे क्लिक कीजिए और शो फाइल पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको वो तमाम वीडियोस नज़र आ जाएंगी। इसी तरह आप व्हाट्सएप इमेजेस में जाके प्राइवेट फोल्डर पे आप क्लिक कीजिए, तस्वीरें देख सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ फोल्डर्स पे आप क्लिक करके तमाम मीडियाज़, ऑडियो पैगामात हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं या स्टिकर्स हैं या दूसरे पैगामात हैं, उनके अंदर जाके प्राइवेट पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। व्हाट्सएप की एक और दिलचस्प फीचर स्टार मैसेजेस या सितारदार मैसेजेस के हवाले से हैं। इस मैसेज में आप अपने पसंद के बेहतरीन पैगामात, हज़ारों और सैकड़ों पैगामात में से किसी एक पैगाम को स्टार करके बाद में देख सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मसलन ये ग्रुप है, इस ग्रुप के किसी भी मैसेज को सितारदार बनाने के लिए आप मैसेज पे थोड़ी देर उंगली दबाए रखें, ऊपर स्टार का निशान नज़र आने पे उस निशान पे आप क्लिक कीजिए, तो इस तरह वो निशान, स्टार का निशान उस मैसेज पे नज़र आना शुरू हो जाएगा, वो स्टार हो जाएगा। इसी तरह आप 2 या 2 से ज़्यादा मैसेजेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस हर निशान पे अलग अलग स्टार का निशान लग जाता है। इसी तरह आप किसी ग्रुप का स्टार मैसेज देखने के लिए आप उस ऊपर के 3 नुक्तों पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ग्रुप इन्फो पे क्लिक कीजिए और नीचे आप देख लीजिए स्टार्ट मैसेजेस लिखे हुए हैं। ये सिर्फ उस मखसूस ग्रुप के स्टार्ट मैसेजेस आप देख सकते हैं, ये उनके स्टार्ट मैसेजेस होंगे। इस मैसेज को आप यहाँ तारीख हैं यहाँ देख भी सकते हैं कि ये मैसेजेस कहाँ से आए हैं। उनको आप अनस्टार भी कर सकते हैं, कॉपी या फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बस ये एक प्राइवेट शख्स है, उन्होंने कोई मैसेज भेजा है, पर्सनल मैसेजेस किसी को भी आप स्टार कर सकते हैं। इसी तरह उनको क्लिक कीजिए और स्टार लगाएं। इसी तरह उस मैसेज को भी आप जाके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसको देखने के लिए आप 3 नुक्तों पे क्लिक कीजिए, व्यू कॉन्टेक्ट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद स्टार मैसेजेस पे क्लिक कीजिए। इस तरह उस शख्स के मखसूस स्टार मैसेजेस आप देख सकते हैं और इस मैसेज को आप आगे भी भेज सकते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप के तमाम बेहतरीन इंतखाबात और स्टार मैसेजेस को देखने के लिए 3 क्लिक्स आपको करनी पड़ती है। ऊपर व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए, चैट्स पे क्लिक कीजिए और उसके बाद ऊपर 3 नुक्तों पे क्लिक कीजिए। 3 नुक्तों के बाद ये नीचे स्टार मैसेज लिखा हुआ है, वहाँ पे आप तमाम स्टार मैसेज इनको ऊपर नीचे करके आप तमाम स्टार का मैसेज देख सकते हैं। यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ कि ये स्टार मैसेज कहीं से कॉपी होके नहीं आते। इन मैसेजेस को आप सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, इनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं और इन मैसेजेस को आप कभी भी डिलीट यहाँ से नहीं करना, क्योंकि ये कहीं से कॉपी होके नहीं आया। अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो वो उस ग्रुप से भी डिलीट हो जाएंगे, इसके बाद आप बेहतरीन मैसेजेस से याद हो सकते हैं। तो इस तरह इन मैसेजेस को अनस्टार करने के लिए, उस लिस्ट से निकालने के लिए उनको सेलेक्ट कीजिए और पर अनस्टार या स्टार के उस निशान पे आप क्लिक कीजिए दोबारा, तो ये उस लिस्ट से निकल जाएंगे मगर डिलीट नहीं होगा। इसी तरह आप अपने बेहतरीन जिस तरह पैकेजेस है या वो मैसेजेस जिसको आप बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको 3 क्लिक की दूरी पे आप दोबारा देख सकते हैं या फ़ायदा उठा सकते हैं उनसे। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आपने बहुत सारे अच्छे मैसेजेस को स्टार नहीं किए हैं। तमाम वो जो टेक्स्ट पैगामात हैं या वो मैसेजेस इनके कैप्शंस हैं उनको स्टार करने के लिए मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपने उन बेहतरीन मैसेजेस को स्टार कैसे कर सकते हैं। की वीडियो व्हाट्सएप में अपनी पसंद की तहरीरें और अल्फाज तलाश करने के हवाले से है। यकीनन आप सब ने व्हाट्सएप में तलाश या सर्च का फीचर ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। इसमें ज़्यादातर लोग सिर्फ नाम तलाश करते हैं, लेकिन इसमें अपनी पसंद के तहरीरें, अल्फाज और मौज़ूआत तलाश कर सकते हैं। मसलन हमने ये लफ्ज़ रोज़ा लिखा तो रोज़े के हवाले से एक लिस्ट आएगी जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है वो फिर आप क्लिक करेंगे तो हाईलाइट होता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह हमने दूसरे अल्फाज लिखे, अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी लफ्ज़ लिख करके उनको तलाश कर
सकते हैं, या आवाज़ अल्फाज जिसको लोग थोड़ा बहुत गलत लिखते हैं, कोरोना या कोरोना, इसको भी आप इस तरह तलाश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको इंग्लिश में भी किसी लफ्ज़ की तलाश है तो आप तलाश कर सकते हैं इंग्लिश में या किसी भी ज़ुबान में। अगर आपको किसी किताब की तलाश है तो आप बुक या PDF या उस फाइल का नाम लिखें जिसके नाम से वो फाइल पोस्ट भी है, वो भी आप तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद के स्माइलीज़ या इमोजीज़ भी तलाश कर सकते हैं। किसी इमोजी को सेलेक्ट कीजिए, उनको कॉपी कीजिए और यहाँ सर्च में पेस्ट करें और आपके सामने वो इमोजीज़ नज़र आएंगी जो जहाँ जिस पोस्ट में इस्तेमाल हुई है या जिस ग्रुप में इस्तेमाल हुई है। इसी तरह आप अपनी पसंद के तमाम इमोजीज़ या सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप अपनी पसंद के उन पैगामात जिनको आप स्टार नहीं कर चुके हैं वो उनको आप स्टार कर सकते हैं आसानी से। तो उनका तरीक़ाकार यही है कि अपने पसंद का मौजू, जिस तरह पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने कहा था कि मुझे मोहब्बत के मौजू पे बहुत सारा मौत चाहिए, तो मैंने उनको यही बताया कि आप मोहब्बत के लफ्ज़ को सर्च में लिखिए, आपके सामने हाईलाइट होता हुआ नज़र आएगा, उन सबको आप सेलेक्ट कीजिए, उनको ऊपर स्टार कीजिए और उनकी कलेक्शन बन जाएगी स्टार मैसेजेस में, उनको आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीरें जिनके कैप्शन आपको याद हैं उनको भी आप तलाश कर सकते हैं। मसलन पिछले दिनों तब्तान की एक वीडियो हमारे सामने गुजरी तो हमने लफ्ज़ तब्तान लिखा और वो वीडियो हमारे सामने आई, हमने देखी। इस तरह आप अपने पसंद की चीज़ें तलाश कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस या माई स्टेटस के हवाले से हैं। इसके लिए आप सबसे पहले स्टेटस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप स्टेटस सेट कर सकते हैं। लेकिन स्टेटस सेट करने से पहले हम ये फैसला करेंगे कि हमने स्टेटस दिखाना किसका है। उसके लिए उस 3 नुक्तों पे क्लिक कीजिए, उसके बाद स्टेटस प्राइवेसी पे क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले माई कॉन्टेक्ट्स होगा। माई कॉन्टेक्ट्स पे आप सेलेक्ट करेंगे तो वो तमाम अफराद जिनके नंबर आपके पास सेव है वो आपका स्टेटस देख सकेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है नीचे, वो है माई कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट। इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद आपका जो स्टेटस होगा वो सिर्फ चंद अफराद तमाम अफराद देख सकेंगे सिवाय उन चंद अफराद की जिनको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ये जो रेड टिक है ये वो नंबर्स है जिनको आप सेलेक्ट करेंगे, बाकी सब आपके दोस्त स्टेटस देख सकेंगे लेकिन सिर्फ ये लोग नहीं देख सकेंगे। अगला तीसरा ऑप्शन होगा ओनली शेयर विथ। अगर आप कोई स्टेटस लगाते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ कोई मखसूस शख्स या मखसूस या अफराद ही देख सके, तो यहाँ ये ग्रीन टिक में जो निशान है ये दोस्त सिर्फ मेरे स्टेटस देख सकेंगे। तो इस तरह सेट करने से आपके सिर्फ ये दोस्त आपके स्टेटस देख सकेंगे। अब आते हैं स्टेटस सेट करने के लिए। इस पेंसिल वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो टेक्स्ट है या लिखाई है वो कर सकते हैं, और दूसरी कैमरे वाले निशान पे आप तस्वीरें या वीडियोस स्टेटस कर सकते हैं। यहाँ हमने टेक्स्ट वाले पे क्लिक किया तो यहाँ आप आके यहाँ नीचे एक कलर का निशान है, यहाँ हमने लिखा इट्स रेनिंग, तो कलर वाले पे क्लिक करने से रंग चेंज होता है। यहाँ टी लिखा होता है, इस टी का मतलब है टेक्स्ट, यहाँ जो फॉन्ट्स है वो फॉन्ट्स चेंज होता है। और इमोजी वाले साइन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इमोजीज भी अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हमने इस छतरी वाली ऐड कर ली है। इसके आगे अब आते हैं स्टेटस के दूसरे हिस्से की, जहाँ कैमरा का निशान है, यहाँ तस्वीरें और वीडियोस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे सबसे पहले ये कैमरा आप आगे और पीछे का लगा सकते हैं। दरमियान वाले पे आप क्लिक करने से आप तस्वीर खींच सकते हैं, या फिर काफ़ी देर प्रेस रखने से या वो आप वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ एक बटन है, यहाँ ये फ्लैश का है। अगर आपके मोबाइल में अगर फ्लैश नहीं भी है तो सामने के कैमरे तस्वीर करते हुए ये लाइट लगेगी और तस्वीर खींचते हुए आप रोशनी आएगी। यहाँ पे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ गैलरी के ऊपर करने से आपको गैलरी की वीडियो और तस्वीरें सामने आएंगी जो आप स्टेटस पे लगा सकते हैं। यहाँ हमने एक वीडियो सेलेक्ट की जिसको हम अपने स्टेटस पे अपसेट करेंगे। तो उससे पहले ऊपर ये पेंसिल का निशान है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ रंग भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ इससे आप लिखाई कर सकते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहें, जिस तरह हमने डियर लिखा। इसके अलावा यहाँ पे टी पे आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताएं, इसको डबल क्लिक करें, सेलेक्ट करें और इसको आप सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जो टी का निशान है इस पर क्लिक करेंगे बार बार, तो ये आपके फॉन्ट्स चेंज होंगे, इससे यानी लिखाई की जो ख़त है वो चेंज होगी। और इसके अलावा सिमिलीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सिमिलीज़ या इमोजीज़ वो चेंज लगा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आप
जो तीर का निशान है इसको, या दायरा है या चकोर है, वो करते हैं। दूसरा है लोकेशन का, यहाँ आप लगाएंगे, अगर आपका परमिशन बना होगा तो ये ऑप्शन आएगा, उसमें सेटिंग में जाके आप परमिशन देंगे तो आप लोकेशन भी भेज सकते हैं। यहाँ पे आप अपना लोकेशन, अपनी जगह जिस जगह आप रह रहे हैं या जहाँ आप मौजूद हैं वो सेट करेंगे तो वीडियो पे ये लोकेशन का निशान आएगा। इस पे क्लिक करने से वो बंदा आपकी जगह तक पहुंच सकता है कि आप जहां मौजूद है। उसके बाद वापस उस साइन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक दिल का निशान है। दिल आप इमेज में करेंगे तो सिर्फ एक आम सा 3D सा दिल होगा, लेकिन अगर इसी दिल को आप किसी वीडियो में पोस्ट करेंगे तो इससे आप वो दिल धड़कता हुआ नज़र आएगा। इसके नीचे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे जो टेक्स्ट ऑप्शन है, इसको आप लेके इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं, लेकिन इसको हम बेहतर तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। इसको दाएं बाएं करें, इसको एक पट्टी टाइप की बना ले, तो ऊपर कर ले, नीचे कर ले। तो इसके अलावा ये ऊपर हमने जो वीडियो सेलेक्ट की, ये एक समी नाम की एक वीडियो है, हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट वाले बॉक्स को लंबा करके यहाँ लगा दिया है, उसका नाम हमने छुपा दिया ऊपर और नीचे, तो इस वजह से, और उसकी कलर भी आप साइडों की आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट बार पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ क्लिक करने के बाद आप सिमिलीज, कोई सिमिली ऐड करें। यहाँ एक दिलचस्प चीज़ बताऊँ, हमने यहाँ लिए डेर सेलेक्ट की और इसके बाद ये डेयर आई, यहाँ पे हमने इसको कॉपी की। कॉपी करने के बाद ये आपकी स्क्रीन में आ जाएगी, इसको कॉपी करें या कट करें। उसके बाद ये स्क्रीन पे आएगी, तो यहाँ पे आप दोबारा टेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट वाले पे और यहाँ पे पेस्ट का बटन आएगा, तो पेस्ट आप पेस्ट कर ले। वो सिमिली जो वहाँ मौजूद नहीं है या ओरिजिनल सिमिली जो अच्छी तस्वीर की तरह, उसको आप बड़ा और छोटा करके आप किसी तस्वीर में यूज़ कर सकते हैं, किसी वीडियो में जो सिमिली वहाँ उन निशानों में मौजूद नहीं है या इमोजीज़ मौजूद नहीं है। तो इसको इसी तरह आपने दिल सेलेक्ट किया, तो ये वो इमोजीज़ जो इतनी खूबसूरत और 3D नहीं है, ये वो 3D खूबसूरत इमोजीज़ आप वीडियोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर ये वीडियो स्टेटस आप 30 सेकंड का लगा सकते हैं, जो 24 घंटे के लिए लगती है। तो इसको आप ऊपर नीचे करके किसी भी वीडियो का, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो है उसको 30 सेकंड पे अपनी पसंद का कोई दरमियान में क्लिप सेलेक्ट करके और बाएं के जो ये गोल गोल निशान है उस पर उंगली रखिए, आप इसको दाएं तरफ का बाएं तरफ और बाएं का दाएं तरफ करके छोटा यानी बड़ा और छोटा करके आप 30 सेकंड का या जितने सेकंड का आप चाहे दरमियान में वो क्लिप बना के आप दे सकते हैं। और अगर अपने एक वीडियो बड़ी वीडियो है उसको बार बार लगानी है, तो हर बार वीडियो को शेयर करते हुए 30 सेकंड का क्लिप सेलेक्ट करके आगे फिर करके अगले 30 सेकंड का, फिर अगले 30 सेकंड का, इस तरह आप एक वीडियो मुख्तलिफ किस्तों में आप दे सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सनासोनी क्रिएशंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इसके अलावा फेसबुक पे हमारे पेज सनासोनी क्रिएशंस को भी लाइक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।